Welcome everyone. Today's topic is ring theory. Ideal. In an empty subset I of a ring R under two binary operation addition and multiplication and I subset of R. I is called a left ideal of R if I is a subgroup of R with respect to addition and Rs belongs to I for all R belongs to R and S belongs to I. If R is commutative, then I is called ideal of R. Similarly, I is called right ideal if SR belongs to I for all R belongs to R and S belongs to I. लेफ्ट और राइट आइडियल जो है ये दोनों डिफरेंशिएट होता है R की पोजीशन से. अगर R लेफ्ट साइड है तो R को तो I को लेफ्ट आइडियल बोलेंगे और अगर R राइट हैंड साइड पे है मतलब जो एलिमेंट रिंग में बिलोंग कर रहा है I R पे तो उसको बोलेंगे राइट आइडियल. RS R लेफ्ट पे SR R राइट पे. याद रखने का तरीका है ताकि कंफ्यूजन ना हो. लेफ्ट और राइट आइडियल इक्वल होता है जब रिंग कम्यूटेटिव होता है. मतलब अगर हम लोग किसी भी कम्यूटेटिव रिंग का आइडियल कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आइडियल मिलेगा या फिर उस केस में लेफ्ट और राइट आइडियल इक्वल हो जाएगा. लेफ्ट एंड राइट आइडियल बोथ आर इक्वल. If R is commutative, then I is called an ideal of R. Any ring R plus dot has always two trivial ideals. One is 0 and the other is R itself. किसी भी रिंग में दो ट्रिवियल आइडियल्स हमेशा एग्जिस्ट करता है. फर्स्ट होगा अ सिंगलटन सेट 0 मतलब अ सिंगलटन सेट कंटेन्स एडिटिव आइडेंटिटी एंड द सेकंड इज द रिंग इटसेल्फ. यहाँ पे आई का सब ग्रुप होना जरूरी है. सब ग्रुप होने की क्या कंडीशन है कि अगर ए और बी आई में है तो ए माइनस बी भी आई में ही होगा. A theorem: an arbitrary intersection of left ideal of ring is a left ideal of the ring. अगर आप arbitrary intersection कंसिडर कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट होगा वो लेफ्ट आइडियल होगा. तो let R be a ring and ST T belongs to T be any family of left ideals of R. Here T is index set and is such that for all T belongs to T. हम लोग कंसिडर करते हैं एक S which is equal to arbitrary intersection of all left ideals. Ideal का definition X belongs to R, X belongs to S, for all T belongs to T, with the intersection of this family of left ideals. So we have to prove that this S must be a left ideal. S कभी भी फाई नहीं होगा क्योंकि हर आइडियल पे जीरो एलिमेंट रहता ही है. तो जीरो arbitrary intersection में होगा मतलब 0 S में होगा. तो this S is non-empty. Now let A and B belongs to capital S. या A और B दो एलिमेंट है S का. If A and B belongs to S implies A and B belongs to ST for all T belongs to T. क्योंकि S arbitrary intersection है ST का and T is index set and T belongs to capital T where capital T is index set. इसका मतलब अगर A B S में है तो A और B ST में भी होगा. अब क्योंकि ST आइडियल है तो उसका सब ग्रुप होना जरूरी है. सब ग्रुप अगर है तो दो एलिमेंट अगर उस सब ग्रुप में है तो A माइनस B सब ग्रुप में ही होगा. ये हम लोग नेसेसरी एंड सफिशिएंट पढ़ चुके हैं फॉर अ सबसेट टू बी अ सब ग्रुप. नेक्स्ट A माइनस B बिलोंग्स टू T बिलोंग्स टू T ST. अगर ये A माइनस B बिलोंग्स टू ST फॉर ऑल T तो ये आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन में भी है. Now let A be any element of S and R be any element of R. We have A belongs to S implies A belongs to intersection of ST implies A belongs to ST for all T belongs to T. अगर A S में लिए तो A उस ST के इंटरसेक्शन में है तो A ST में होगा for all T belongs to T. तो R A भी ST में होगा for all T belongs to T. क्यों? क्योंकि ST लेफ्ट आइडियल है. तो अगर ये for all T belongs to T and R A belongs to ST है तो R A arbitrary intersection of ST में है implies R A belongs to S. अब यहाँ पे A minus B belongs to intersection of ST और यहाँ पे R A belongs to S है. इसका मतलब है जो S है वो भी लेफ्ट आइडियल है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो दो लेफ्ट आइडियल है वो दोनों का सम करेंगे तो वो भी आइडियल ही होगा. इसके प्रीवियस थ्योरम में हम लोग देखे
कि arbitrary intersection of left ideals of a ring is a left ideal. ये थ्योरम चेंज भी हो सकता है. An arbitrary intersection of right ideals of a ring is also a right ideal of a ring. ऐसे भी बोल सकते हैं R is commutative ring when intersection of ideals of a ring is again an ideal. जिस टाइप से क्वेश्चन होगा एग्जाम में वैसे आंसर देना. तो नेक्स्ट हम लोगों को प्रूव करना है कि अगर कोई दो लेफ्ट आइडियल है तो उसका सम भी लेफ्ट आइडियल ही होगा. The left ideal generated by the union I1 in union I2 of two left ideals is the set I1 plus I2 consisting of the elements of R obtained on adding any element of I1 to any element of I2. ये प्रूव करना है. ठीक है. The left ideal generated by I1 union I2 of two left ideals is the set I1 plus I2. चलिए देखते हैं. प्रूफ है. Let A1 plus A2 B1 plus B2 belongs to sum of two ideals. I1 और I2 ideals है. दो सेट का सम अगर ले रहे हैं तो उसका जो भी एलिमेंट होगा उस ऐसे पैटर्न में होगा जिस ऑर्डर में सेट लिए उसी ऑर्डर में एलिमेंट जाएगा. लाइक A1 plus A2 belongs to I1 plus I2 का मतलब है A1 I1 में A2 I2 में. Similarly B1 I1 में B2 I2 में. Since I1 and I2 both are left ideals of R, therefore there must be a subgroup. अगर सब ग्रुप है और दो एलिमेंट I1 में है तो A1 माइनस B1 I1 में होगा. सिमिलरली A2 माइनस B2 I2 में होगा. अब ये एक एलिमेंट I1 में है, ये दूसरा एलिमेंट I2 में है. अब क्योंकि I1 और I2 दोनों लेफ्ट आइडियल है तो दोनों का डिफरेंस दिस A1 प्लस A2 माइनस B1 प्लस B2 दिस कैन बी रिटन एज A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2. अब ये पहला एलिमेंट I1 में, दूसरा एलिमेंट I2 में, तब ये एलिमेंट I1 प्लस I2 का होगा. Therefore, I1 plus I2 is a subgroup of the additive group of R. यहाँ पे हम लोग शो किए हैं. इनिशियली मेरे पास था I1 एक आइडियल, I2 एक आइडियल. क्योंकि I1 और I2 आइडियल है तो वो सब ग्रुप होगा. ये हम लोग यहाँ से दिखा दिए A1 माइनस B1 और A2 माइनस B2. अब A1 प्लस A2 I1 प्लस I2 का एलिमेंट है. B1 प्लस B2 भी I1 प्लस I2 का एलिमेंट है. अगर ये दोनों का डिफरेंस I1 प्लस I2 में आता है तो सब ग्रुप के नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के थ्रू हम लोग शो कर देंगे कि I1 प्लस I2 एक सब ग्रुप है. और यहाँ पे ऐसा हो रहा है मतलब I1 प्लस I2 सब ग्रुप है. नाउ लेट R बिलोंग्स टू R. एक एलिमेंट हम लोग रिंग से लेते हैं, एक एलिमेंट हम लोग आइडियल से लिए. अगर I1 प्लस I2 को आइडियल दिखाना है तो पहले उसको सब ग्रुप दिखाना होगा जो हम लोग ऑलरेडी दिखा चुके हैं. नेक्स्ट हम लोगों को दिखाना है कि एक एलिमेंट अगर R में है, रिंग में है, और दूसरा एलिमेंट आइडियल में है तो रिंग का एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय आइडियल का एलिमेंट मस्ट बिलोंग्स टू दैट आइडियल. तो एक एलिमेंट रिंग से, एक एलिमेंट उस आइडियल से जिसको शो करना है, एक एलिमेंट उस सेट से जिसको शो करना है कि वो आइडियल है. देन A1 belongs to I1, A2 belongs to I2. We have R A1 plus A2 equal to R A1 plus R A2. ये I1 का एलिमेंट, ये I2 का एलिमेंट, तो कंबाइंडली ये हो जाएगा I1 प्लस I2 का एलिमेंट. ठीक है. और कैसे ये हो रहा है क्योंकि I1 और I2 दोनों आइडियल है. दिस मीन्स I1 प्लस I2 इज अ लेफ्ट आइडियल ऑफ R. ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ इस थ्योरम का. इसका मतलब है अगर कभी क्वेश्चन आता है कि शो दैट सम ऑफ टू लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल इज अगेन अ लेफ्ट एज वेल एज राइट आइडियल तो आपको यहाँ तक प्रूफ करना होगा. यहाँ तक नेक्स्ट हम लोग शो करेंगे कि I1 plus I2 is generated by I1 union I2. So 0 belongs to I2. Therefore, A1 belongs to I1 can be written as A1 plus 0. Thus, A1 belongs to I1 implies A1 belongs to I1 plus I2. कोई एक I2 आइडियल है तो 0 एलिमेंट उसमें होगा. क्यों? क्योंकि वो सब ग्रुप होता है. आइडियल का पहला क्राइटेरिया है कि उसका सब ग्रुप होना जरूरी है. अगर वो सब ग्रुप है अंडर एडिशन तो एडिटिव आइडेंटिटी उसमें होगा. इसलिए यहाँ पे 0 I2 में है. A1 I1 में है तो हम लोग A1 को लिख सकते हैं A1 प्लस 0. इसका मतलब है A1 प्लस 0 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2. ऑल्दो A1 I1 में है बिकॉज ऑफ दिस 0 A1 ऑल्सो बिलोंग्स टू I1 प्लस I2. जो एलिमेंट हम I1 से लिए वो अल्टीमेटली I1 प्लस I2 में. इसका मतलब है I1 इज सबसेट ऑफ I1 प्लस I2. सिमिलरली I2 is subset of I1 plus I2. दोनों का यूनियन लेंगे तो I1 union I2 subset of I1 plus I2. Thus I1 plus I2 is a left ideal containing I1 union I2.
Also, if any left ideal contains union of these two ideals, then it must contain I1 plus I2. ठीक है, कोई भी लेफ्ट आइडियल जो I1 प्लस I2 को कंटेन करेगा वो डेफिनेटली I1 प्लस I2 को कंटेन करेगा. I1 plus I2 is the smallest left ideal containing I1 union I2. I1 plus I2 जो है वो सबसे छोटा लेफ्ट आइडियल है जो I1 यूनियन I2 को कंटेन करता है. इसका मतलब है कि I1 plus I2 जो है this is equal to the left ideal generated by I1 union I2. ये सेम चीज हम लोग राइट आइडियल के भी प्रूव कर सकते हैं कि the right ideal generated by the union of I1 union I2 of two right ideals in the set I1 plus I2 consisting of the elements of R obtained on adding any element of I1 to any element of I2. Next is a field has no proper ideals. That is, if F is a field, then its only ideals are 0 and F itself. प्रूव करना है कि जो फील्ड है उसका कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होता है. जो भी आइडियल एग्जिस्ट करता है या तो वो सिंगलटन सेट 0 या सिंगलटन सेट कंटेनिंग एडिटिव आइडेंटिटी एंड दैट सेट इटसेल्फ और दैट फील्ड इटसेल्फ. लेट एस बी एनी नॉन जीरो आइडियल. अच्छा, इसको प्रूव करने का वे क्या होगा, हम लोग एज्यूम करेंगे कोई भी एक नॉन जीरो आइडियल जो फील्ड का है, क्योंकि शो करना है कि एफ के पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि नहीं एफ के पास प्रॉपर आइडियल है और अल्टीमेटली शो करें कि वो आइडियल या तो 0 हो रहा है या फिर फील्ड के इक्वल हो रहा है. तो हमारा assumption है कि let S be any non-zero ideal of the field F and let A be any non-zero element of S. एक आइडियल लिए और वो उस आइडियल में एक एलिमेंट A लिए जो नॉन जीरो है. तो अगर वो नॉन जीरो है तो उसका इनवर्स मिलेगा फील्ड में. क्यों मिलेगा, क्योंकि फील्ड में सारा नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है. ये फील्ड का डेफिनेशन है. S अगर आइडियल है तो A S में होगा और A इनवर्स F में होगा क्योंकि यह फील्ड है तो A इनवर्स S में होगा. इसका मतलब है कि 1 S में है. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिलोंग्स टू S. Now let X be any element of F. Then 1 belongs to S. X belongs to F implies 1 into X belongs to S if ideal का property है. So this implies X belongs to S. Thus each element of F belongs to S. Therefore F is subset of S. जो भी एलिमेंट हम लोग F में ले रहे हैं वो S में मिल रहा है यहाँ से इस लाइन से. तो जो भी एलिमेंट F में है वो S में चला जा रहा है. इसका मतलब F S का सबसेट है. लेकिन आइडियली S इज सबसेट ऑफ F. ये दोनों अगर मिलाएंगे तो S इक्वल टू F. Thus the only ideals of F are 0 or and F itself. प्रूफ हो गया. ये एक नॉन जीरो आइडियल लिए थे जो फील्ड के इक्वल हो गया. Next is a commutative ring with unity is a field if it has no proper ideal. कोई भी कम्यूटेटिव रिंग अगर उसमें यूनिटी है वो फील्ड होगा अगर उसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है. लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग नो प्रॉपर आइडियल्स. ठीक है, हम लोग एज्यूम करें कि एक रिंग है जिसके पास यूनिटी भी है और प्रॉपर आइडियल नहीं है. वी हैव टू शो दैट आर मस्ट बी ए फील्ड. अब फील्ड शो करने के लिए क्या करना होगा, फील्ड शो करने के लिए आर के सारे नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिखाना होगा. तो लोग एज्यूम करते हैं लेट ए बी एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर. देन द सेट आर ए इक्वल टू एक सेट कंसीडर करते हैं आर ए. अब आर ए जो लेंगे वो इस फॉर्म में होगा. स्मॉल आर कैपिटल आर से जाएगा रिंग से और ए होगा, ए सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा. इज एन आइडियल ऑफ आर. ये आइडियल होता है, आप खुद भी चेक करके देख सकते हैं. आइडियल होने के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है बस इसका सब ग्रुप होना चाहिए, ये सब ग्रुप होगा. और दूसरा जो कंडीशन है लेफ्ट और राइट के लिए आइडियल के लिए कि एक एलिमेंट अगर आप रिंग से ले एक एलिमेंट अगर आप रिंग से ले रहे हो और दूसरा आइडियल से तो उसका प्रोडक्ट आइडियल में होना चाहिए. Since 1 belongs to R, therefore 1A equal to A which belongs to RA. Thus 0 is not equal to A. अगर रिंग में यूनिटी एलिमेंट है तो 1A can be written as A. This belongs to RA. A को लिख सकते हैं 1 into A. तो ये RA में होगा. Thus 0 is not equal to एक नॉन जीरो एलिमेंट A लिए हैं which belongs to RA.
Therefore, the ideal RA is not equal to 0. अगर आप A not equal to 0 लिए हैं तो RA भी not equal to 0 ही होगा. Since R has no proper ideals, therefore the only possibility is that RA equal to R. R के पास कोई proper ideal नहीं है. A not equal to 0 है. R A 0 होगा नहीं. तो RA के पास एक ही possibility है कि RA का value R के equal हो जाए. Thus, every element of R is a multiple of A by some elements of R. In particular, 1 belongs to R, so it can be realized as a multiple of A. R का जितना भी एलिमेंट है वो मल्टीपल ऑफ ए में लिखा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस आर ए इक्वल टू आर ए सच दैट आर बिलोंग्स टू आर. अगर हम लोग ए भी ले रहे हैं तो ए कैन बी रिटन एज 1 into ए, बी ले रहे हैं तो दैट कैन बी रिटन एज 1 into बी, सी ले रहे हैं दैट कैन बी रिटन एज C1 into ए एंड सो ऑन. मतलब कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो उसको ए के मल्टीपल में लिख सकते हैं. तो यहाँ पे बोला जा रहा है does there exist an element b belongs to r for a not equal to 0 such that b equal to 1. इसका मतलब है कि b a का इनवर्स है. तो कोई भी ऐसा एलिमेंट लेंगे जो नॉन जीरो है तो r में उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा. इसका मतलब है r फील्ड है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग. A commutative ring R without zero divisor and with unity element is a principal ideal ring if every ideal S in R is a principal ideal. That is, every ideal S in R is of the form S equal to A for some A belongs to R. प्रिंसिपल आइडियल रिंग है. इसके पहले प्रिंसिपल आइडियल क्या है? सिंपल डेफिनेशन आप लोगों को याद होगा. व्हाट इज साइक्लिक ग्रुप? साइक्लिक ग्रुप में आपके पास एक जनरेटर होता था इसके थ्रू आप एक ग्रुप जनरेट करते थे. सबको याद होगा nth रूट ऑफ यूनिटी. nth रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता था? ओमेगा के थ्रू. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी याद करिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. इस केस में ये फाइनाइट ग्रुप के केस में दिस इज अ साइक्लिक आल्सो. इसका जनरेटर था ओमेगा. मतलब आप इस ग्रुप को ओमेगा के पावर में लिख रहे थे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा 3. प्रिंसिपल आइडियल के केस में वैसा आइडियल को प्रिंसिपल आइडियल बोलते हैं जो एक एलिमेंट से जनरेट होता है. जैसे मल्टीपल ऑफ 2. सेट ऑफ इंटीजर अगर रिंग है तो मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 4 ऑल आर प्रिंसिपल आइडियल. 2 से जनरेट हो रहा है 2, 4, 6 एंड सो ऑन और 4, 8, 12 एंड सो ऑन. तो जिस भी रिंग में सारा आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल आइडियल रिंग. ए कम्यूटेटिव रिंग एंड दैट रिंग मस्ट बी ए कम्यूटेटिव विदाउट जीरो डिवाइजर एंड विथ यूनिटी. मतलब प्रिंसिपल आइडियल रिंग होने के लिए रिंग का कम्यूटेटिव होना, रिंग का विदाउट जीरो डिवाइजर होना एंड यूनिटी होना और साथ में ऑल आइडियल मस्ट बी प्रिंसिपल आइडियल होना मैंडेटरी है. मतलब ये 4 पॉइंट है. ए कम्यूटेटिव रिंग, first is a commutative ring, second is without zero divisor, third is with unity and all ideal is principal ideal. Next theorem, the ring of integer is the principal ideal ring. जो ring of integer है मेरे पास z plus dot, ये principal ideal ring होता है. तो principal ideal ring होता है मतलब इसका जो भी ideal होगा वो principal ideal होगा. चलिए, let I plus dot be a ring of integer. Obviously I is a commutative ring with unity. ये तो understood है. Set of integer नंबर सिस्टम है. नंबर सिस्टम कम्यूटेटिव होता है. सेट ऑफ इंटीजर में 1 है और वो विदाउट जीरो डिवाइजर है. क्यों? क्योंकि इंटीजर के केस में अगर आपके पास 2 नॉन जीरो एलिमेंट है तो आप कभी भी उनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो जीरो नहीं मिलेगा. तो I का जो भी आइडियल है, therefore I will be a principal ideal if every ideal of I is a principal ideal. तो I principal ideal होगा कब? जब I का सारा ideal principal ideal होगा. Let S be any ideal of ring of integer. If S is the null ideal, then S equal to 0. So S is principal ideal. Next, अगर S zero ideal से S अगर 0 से जनरेट हो रहा है या S zero ideal है तो बात खत्म. जो भी I का आइडियल है वो जीरो आइडियल है तो प्रिंसिपल आइडियल हो गया.
हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक आइडियल S है विच इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ S कंटेन्स एटलीस्ट वन नॉन जीरो इंटीजर से A. अगर S जीरो आइडियल नहीं है तो S एक नॉन जीरो इंटीजर से जनरेट होना चाहिए. तो मान लीजिए वो A है. सिंस S इज अ सब ग्रुप ऑफ R अंडर एडिशन, S सब ग्रुप होगा आइडियल है तो A अगर S में है तो माइनस A भी S में होगा. इसका मतलब है कि S के पास एक पॉजिटिव इंटीजर होगा ही होगा. अगर A S में और A नेगेटिव है तो माइनस A पॉजिटिव होगा. अगर A पॉजिटिव है माइनस A नेगेटिव होगा. तो हर केस में S के पास एक पॉजिटिव इंटीजर जरूर होगा. Because if A is not equal to 0, then one of A and minus A must be positive. Clear है? Let S plus be the set of all positive integer in S. अब S से एक नया सबसेट बनाते हैं जिसमें S का सारा पॉजिटिव इंटीजर है. Since S plus is not empty, therefore by the well ordering principle of S plus must have at least positive integer. Well ordering principle नंबर सिस्टम में फॉलो करता है. S प्लस में पॉजिटिव नंबर का कलेक्शन है. अगर वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल देखेंगे तो उसमें एक लीस्ट नंबर रहेगा ही. तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि स्मॉल s जो है वो लीस्ट नंबर है. नाउ वी शैल शो दैट s इज अ प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय दैट स्मॉल नंबर. तो हम लोगों को शो करना होगा कि कैपिटल S is generated by small s. Now n is any integer in capital S, then by the division algorithm there exists q and r such that n equal to qs plus r. जहाँ पे r का वैल्यू जो है 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन s के इक्वल नहीं होगा. अब स्मॉल s कैपिटल S में है, q I में है और q s में है. क्यों? क्योंकि s आइडियल है. n s में है, q s में है और तो n माइनस q s में होगा क्योंकि s सब ग्रुप है. इसका मतलब है कि r s में होगा. क्यों? क्योंकि n r इक्वल टू n माइनस q s. यहां से r इक्वल टू n माइनस क्यू एस. अब यहाँ पे बोला जा रहा था कि s जो है वो लीस्ट नंबर है. यहाँ लिखा हुआ है ना कि s बीट्स लीस्ट एलिमेंट. बट यहाँ पे है r जो s से भी छोटा है और r s में भी है. इसका मतलब हम लोग कहाँ कॉन्ट्रडिक्शन में पहुंच रहे हैं. हाँ, एक पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि r का वैल्यू हम लोग 0 कर दें. But r lies between 0 and s, and s is the least positive integer such that s belongs to s. So r equal to 0. इसका मतलब है n equal to qs. अब n जो था वो एक इंटीजर था, कैपिटल S में था और रैंडम चॉइस था. और हम लोग शो किए कि दैट n must be written as multiple of s. Thus n belongs to s implies n equal to qs for some q belongs to I. Hence I is the principal ideal of I generated by s. तो अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं s में तो वो स्मॉल s का मल्टीपल आ रहा है. इसका मतलब वो एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है. इसका मतलब है s प्रिंसिपल आइडियल है. और क्योंकि s का सिलेक्शन आर्बिट्ररी था तो सेट ऑफ इंटीजर जो है, जो रिंग है, उसका सारा आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होगा. इसलिए सेट ऑफ इंटीजर इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग. एंड द नेक्स्ट थ्योरम इज एवरी फील्ड इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग. कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल आइडियल रिंग, इमीडिएटली याद करिए फील्ड. फील्ड याद करना आसान है तो फील्ड याद करिए और वो जो फील्ड है वो लिख दीजिए, वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो जाएगा. इफ फील्ड हैज, इसके पहले कुछ दो थ्योरम की या लास्ट 2 थ्योरम के पहले हम लोग देखे थे कि जो फील्ड है उसका कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होता है. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल्स, प्रॉपर आइडियल नहीं है इसका मतलब इम्प्रॉपर आइडियल है. इम्प्रॉपर आइडियल होगा 0 आइडियल और वो फील्ड इटसेल्फ. The only ideals of fields are null ideal or 0 ideal, which is principal ideal generated by 0, and the field itself, which is also principal ideal generated by 1. Thus, field has only 2 principal ideals, so field is principal ideal ring. Next is, if S is an ideal of ring R, then the set R by S equal to, or R quotient S equal to S plus A belongs to R. Of all residue classes of S in R form a ring of the 2 composition in R quotient S defined as follows. इस थ्योरम में क्वोशिएंट रिंग का डेफिनेशन भी मिलता है. क्वोशिएंट रिंग
R is defined as collection of S plus A where A belongs to R and satisfy this operation. दो एलिमेंट को अगर आप सम करेंगे तो S plus A plus B होना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो S plus AB, ये कोशेंट रिंग है। और आपको शो करना है कि अगर एक सेट ऐसा है which is R by S and all elements of R by S can be written as S plus A such that A belongs to R under and defined by two composition then R by S is a ring। आसान है, समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। इसमें एक ही चीज जो है नोट करने वाली है, जब आप शो करेंगे ना कोशेंट रिंग है ये। अगर आपको याद होगा कोशेंट ग्रुप, अगर G ग्रुप है H उसका सब ग्रुप है, ठीक है, तो G by H जब हम लोग लेते हैं या कोशेंट का कलेक्शन जो लेते हैं G by H, उसमें जो उसका एडिटिव आइडेंटिटी होता है कोशेंट हो जाता है। G by H के केस में H होता है। यहाँ पे आइडियल का केस हो रहा है R by S, या S आइडियल है R रिंग है, यहाँ पे जो आइडेंटिटी होगा ना वो S होगा, यहाँ पे दिखाए, ठीक है। आसान है एसोसिएटिव दिखाना, आइडेंटिटी दिखाना, ठीक है, सब कुछ एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा एसोसिएटिविटी कैसे निकाला गया है, कम्यूटेटिविटी इजी है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी S, R by S के लिए एडिटिव आइडेंटिटी इज S। अगर आप यहाँ पे R by I लेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी I होगा। अगर ग्रुप थ्योरी देखें, समझे हैं क्वेश्चन ग्रुप, तो ये वही सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है। चलिए नेक्स्ट इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स। होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप पढ़े थे, क्या होता है ग्रुप के केस में, आपको दो ग्रुप चाहिए, दो ग्रुप के बीच मैपिंग होता है और कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है। यहाँ पे क्या होगा, दो रिंग है, दो रिंग के बीच मैपिंग है F डिफाइंड फ्रॉम R to R dash and satisfy this two property, मतलब f of a plus b equal to f of a plus f of b for all a b belongs to R and f of a b equal to f of a into f of b for all a b belongs to R। ये हो गया होमोमॉर्फिज्म इनटू के केस में क्या लिखा हुआ है, a mapping f from a ring R into a ring R dash। जो मैपिंग का केस है ना वो इनटू मैपिंग है। इनटू के केस में क्या होता है, आपके पास जब मैपिंग आप लेते हैं डोमेन कोडोमेन लेते हैं, कोडोमेन में अगर आपके पास कुछ एलिमेंट्स रह रहा है जिसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो इनटू मैपिंग है। होमोमॉर्फिज्म ऑनटू डिफाइन कैसे करेंगे, ए मैपिंग एफ फ्रॉम अ रिंग आर ऑनटू आर डैश। तो अब ये इनटू और ऑनटू में डिफरेंस, ऑनटू के केस में अगर आपके पास कोडोमेन है ना उसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट करे। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि कोडोमेन में हर एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा तो वो मैपिंग ऑनटो होगा, और उसको होमोमॉर्फिज्म ऑनटो तभी बोलेंगे जब ये साथ में दो प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा। और आर डैश को, क्योंकि मैपिंग आर से आर डैश के बीच डिफाइन है तो आर डैश को हम लोग होमोमॉर्फिक इमेज भी बोलते हैं। Next is kernel of a ring homomorphism. Same definition like group कि what is a kernel of group homomorphism, same चीज यहाँ भी डिफाइन कर रहे हैं। इतना याद रखिएगा, कर्नल अगर हम मेरे पास दो रिंग है R एंड R डैश और उसके बीच होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया है, ठीक है, एक R है दूसरा R डैश, तो कर्नल में R का एलिमेंट रहता है और वैसा एलिमेंट जो R डैश के जीरो को मैप करता है। मतलब kernel has all those elements of R which maps 0 of R dash। ऐसे भी बोल सकते हैं kernel is a collection of all elements belongs to domain which maps 0 of codomain। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम। If F is a homomorphism of a ring R into R dash with kernel S, then S is an ideal of R। को ये प्रूव करना है कि अगर कोई होमोमॉर्फिज्म है F फ्रॉम R टू R डैश और उसका कर्नल S है तो कर्नल आइडियल भी होगा। पहले हम लोग प्रूव किए थे ग्रुप के केस में कि कर्नल सब ग्रुप होगा, ठीक है, तो F भी है होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम रिंग R इनटू R डैश, तो 0 और 0 डैश R और R डैश का 0 एलिमेंट होगा। S कर्नल है, इसका मतलब है कि S में ये नेचर होगा, S has all those element of R which maps 0 element of R dash। इसका मतलब है कर्नल में जो भी एलिमेंट जाएगा 0 मैप करेगा, वो R डैश के 0 को मैप करेगा। तो कोई एलिमेंट रहे ना रहे
जीरो तो उसमें रहेगा ही, इसलिए एस जो है वो नॉन एम्प्टी होगा। अब हम अब यहाँ पे दिखाना है कि कर्नल आइडियल है, तो हम पहले दिखाएंगे, पहले हम लेंगे कि दो एलिमेंट एस में है, और वो अगर दो एलिमेंट ए भी एस में है तो ए माइनस बी भी एस में होना चाहिए। तो ए भी एस में है तो एफ ऑफ ए जीरो डैश, एफ ऑफ बी जीरो डैश, क्यों? क्योंकि ये एस में है और एस कर्नल है। तो एफ ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू भी हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ माइनस बी, ये भी जीरो ये भी जीरो, इसका मतलब है ए माइनस बी भी एस में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर एफ ऑफ ए माइनस बी एस में चला, ए माइनस बी एस में चला गया, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिखाना होगा कर्नल के लिए कि आर, एक एलिमेंट हम लोग रिंग से लेंगे स्मॉल आर और दूसरा एलिमेंट लेंगे एस, दूसरा एलिमेंट हम लोग लेंगे एस से। तो सपोज ए बिलोंग्स टू एस, इसका मतलब है एफ ऑफ ए बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो। तो आर एफ ऑफ ए कैन बी रिटन एज एफ ऑफ आर ए और आर एफ ऑफ ए, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, बट आप ये पार्ट खुद से करिएगा, छोटा सा पार्ट है। यहाँ पे जैसे एफ ऑफ ए माइनस बी है, आप यहाँ पे लिखेंगे आर, यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू जीरो, और आर एफ ऑफ ए कैन बी रिटन एज एफ ऑफ आर ए, दिस इज इक्वल टू जीरो, सो आर ए ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। ठीक है, लेफ्ट आइडियल के लिए आर ए और राइट आइडियल के लिए ए आर, दोनों इक्वल होगा तो ये आइडियल हो जाएगा। नेक्स्ट इज थ्योरम नंबर 2, the homomorphism phi of a ring R into a ring R dash is an isomorphism of R into R dash if and only if I phi equal to 0 and I phi denotes the kernel of phi। ठीक है, एक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहे हैं हम लोग R से R dash के बीच, जो एक आइसोमॉर्फिज्म होगा R into R dash में। कंडीशन कब, क्या कंडीशन है? if and only if I phi equal to 0। होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म कब बनता है? पहले तो उसका होमोमॉर्फिज्म होना जरूरी है, और अगर वो 1-1 हो जाता है तो वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग एज्यूम करते हैं कि फाई होमोमॉर्फिज्म है आर इंटू आर डैश में, तो दो एलिमेंट तो इसमें होगा जीरो एंड जीरो डैश, लेट एस इक्वल टू आई फाई, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि एस इक्वल टू आई फाई विद द कर्नल ऑफ फाई। तो एस तो आइडियल होगा, कर्नल किसी भी होमोमॉर्फिज्म का कर्नल हमेशा आइडियल होता है, तो एस इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर, फाई इक्वल टू जीरो डैश, ये कर्नल का डेफिनेशन हो गया। सपोज फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ आर इंटू आर डैश, तो फाई 1-1 होगा। फाई अगर 1-1 है, इसका मतलब है फाई ए इक्वल टू जीरो डैश है, तो फाई ए इक्वल टू फाई जीरो होगा, ए इक्वल टू जीरो, क्यों? क्योंकि फाई इज 1-1, तो ए बिलोंग्स टू एस और इंप्लाइज ए इक्वल टू जीरो। ए अगर इसमें तो ए जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये। इन अदर वर्ड्स, जीरो इज द ओनली एलिमेंट ऑफ आर विच बिलोंग्स टू एस। जो भी एलिमेंट हम एस में ले रहे हैं वो जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब है कि एस में सिर्फ जीरो ही एलिमेंट है, तो एस इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ पे ये दिखाना था, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्सली सपोज दैट एस इक्वल टू जीरो, तो वी हैव टू शो दैट फाई इज आइसोमॉर्फिज्म, देन वी हैव टू प्रूव दैट फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ आर इनटू आर डैश। तो ए भी हम लोग आर में लिए, तो फाई ए इक्वल टू फाई बी हो गया, तो फाई ए माइनस फाई बी इक्वल टू जीरो डैश, तो फाई ए माइनस बी इक्वल टू जीरो डैश, दिस इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, क्योंकि ये एलिमेंट जीरो डैश को मैप कर रहा है, मतलब ये एलिमेंट एस में होगा, तो ए इक्वल टू बी, सो फाई इज 1-1, hence phi is an isomorphism of R into R dash. Next is fundamental theorem of homomorphism of ring। जैसे आप ग्रुप में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़े थे, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का, अभी रिंग होमोमॉर्फिज्म का पढ़ना है। सेम टाइप का ये, सेम कैलकुलेशन भी है, बस वहां पे कोसेट और सब ग्रुप का बात था, यहाँ पे आइडियल्स का बात होगा, ठीक है। वहां पे कोशेंट ग्रुप था, यहाँ कोशेंट रिंग है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग, तो आप ये थ्योरम स्टेटमेंट के साथ याद रखिएगा या स्टेटमेंट के साथ समझिएगा। एट आर डैश, सॉरी, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ रिंग आर इज आइसोमॉर्फिक टू सम कोशेंट रिंग। ठीक है, कोई भी रिंग है अगर उसका होमोमॉर्फिक इमेज ले रहा है तो वो होमोमॉर्फिक इमेज हमेशा किसी न किसी कोसेंट ग्रुप के, सॉरी कोसेंट रिंग के आइसोमॉर्फिक होगा। तो लोग सबसे पहले आर डैश भी एक होमोमॉर्फिक इमेज कंसीडर करते हैं,
तो लोग एज्यूम करते हैं कि आर डैश जो ये होमोमॉर्फिक इमेज है एक रिंग आर का अंडर द होमोमॉर्फिज्म एफ, देन एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर ऑन टू आर डैश। अब इसका कर्नल एज्यूम करते हैं तो एस इज द कर्नल ऑफ दिस होमोमॉर्फिज्म। अब कोशेंट रिंग बनाते हैं तो आर बाई एस हो जाएगा कोसेंट रिंग। तो हम लोगों को दिखाना है कि दैट कोसेंट रिंग इज आइसोमॉर्फिक टू that homomorphic image या homomorphic image of ring is isomorphic to some quotient group। ये आइसोमॉर्फिज्म का नोटेशन है। अब ए आर में है, ठीक है, तो एस प्लस ए आर प्लस आर क्वोशेंट एस में होगा, इसका सारा एलिमेंट एस प्लस ए वाले फॉर्म में होगा। तो एफ ऑफ ए आर डैश में जाएगा, क्यों? क्योंकि एफ जो है वो होमोमॉर्फिज्म है आर से आर डैश में, तो आर डैश का जो एलिमेंट है वो एफ ऑफ ए के फॉर्म में होगा। अब हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, वो मैपिंग होगा आर बाई आर कोशेंट एस से आर डैश में। तो फाई एलिमेंट ऑफ आर कोशेंट एस, तो एलिमेंट ऑफ आर कोशेंट एस कैसा होगा? एस प्लस ए के फॉर्म में। अब आर डैश के एलिमेंट को मैप कर रहा है, तो आर डैश का एलिमेंट कैसा होगा? आर डैश का एलिमेंट तो होमोमॉर्फिज्म के थ्रू डिफाइन हो रहा है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट we shall show that the mapping phi is well defined, phi is 1 1 and phi is homomorphism। तो ये phi क्या हो जाएगा अल्टीमेटली? आइसोमॉर्फिज्म। तो वेल डिफाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे? इमेज इक्वल करेंगे और शो करेंगे कि उसका प्री इमेज सेम होगा। तो s प्लस ए इक्वल टू s प्लस बी एज्यूम किए, देन वी हैव टू शो दैट इमेज इसका सेम, एलिमेंट सेम है तो उसका इमेज सेम होगा, ये होगा वेल डिफाइंड। और अगर इमेज सेम है और एलिमेंट सेम होता है तो ये हो जाएगा 1 1। रिवर्स प्रोसेस है, यहाँ दो एलिमेंट हम इक्वल किए तो a माइनस बी एस में है, तो इसका मैप जो होगा ये 0 डैश होगा। a माइनस बी कर्नल में है तो उसका इमेज 0 डैश। अब a प्लस माइनस बी लिख सकते हैं, ये होमोमॉर्फिज्म के डेफिनेशन से दिस कैन बी रिटन एज f of a minus f of b 0 डैश। तो phi वेल डिफाइन हो गया। दिस इज f of a इक्वल टू f of b। f of a का मतलब क्या है? phi s प्लस a, f of b का मतलब है phi s प्लस b, ये वेल डिफाइन हो गया। नेक्स्ट इज phi is 1 1, रिवर्स कर देना है उसको, phi s प्लस a, phi s प्लस b, फिर f of a के टर्म में लेके आए, फिर एलिमेंट को फंक्शन हटा दिए बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कर्नल, और phi 1 1 हो गया। ऑनटो के लिए जब भी हम लोगों को ऑनटो दिखाना होता है तो हम लोगों को कोडोमेन से एक एलिमेंट चूज करना पड़ता है, रैंडम या आर्बिट्ररी एलिमेंट, और दिखाना होता है कि उसका प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे लेट y बी एनी एलिमेंट ऑफ r डैश, देन y इक्वल टू f ऑफ a फॉर सम a बिलोंग्स टू r, बिकॉज f इज ऑनटो, f ऑनटो है, पहले लिखे है कि f इज होमोमॉर्फिज्म ऑनटो फ्रॉम r टू r डैश, तो s प्लस a r बाई s में होगा या r कोशेंट s में होगा। इसका मतलब है कि phi s प्लस a का वैल्यू f ऑफ a के इक्वल होगा जो y है। तो हम लोगों के पास एक y था जिसका प्री इमेज हम लोगों को f ऑफ a या phi s प्लस a मिल गया, तो phi is on to r डैश। अब इतना कुछ हो गया, वेल डिफाइन हो गया, 1 1 हो गया, ऑनटो हो गया। अभी तक आइसोमॉर्फिज्म नहीं हुआ। आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए होमोमॉर्फिज्म कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, तो मैं यहाँ पे phi का होमोमॉर्फिक नेचर सेटिस्फाई करवाएंगे। तो दिस इज phi एक एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट, ये ब्रेक किए, ठीक है, ये उसके नेचर से हो गया s प्लस a प्लस b, ये f ऑफ a प्लस b, इसको लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस f ऑफ b, क्योंकि f इज ऑलरेडी होमोमॉर्फिज्म, तो ये होमोमॉर्फिज्म वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, तो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस। एंड phi s प्लस a s प्लस b, इसको लिख सकते हैं s प्लस a b, दिस इज f ऑफ a b, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है तो दिस कैन बी रिटन एज f ऑफ a इनटू f ऑफ b एंड दिस। तो अल्टीमेटली phi is isomorphism। इंपॉर्टेंट थ्योरम में ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, an ideal S of a commutative ring R with unity is maximal if and only if the residue class ring R by S is a field। अगर S कम्यूटेटिव रिंग, S अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग का आइडियल है और वो रिंग यूनिटी के साथ है, मतलब if R is a commutative ring with unity then R by S is a field, मतलब कोशेंट रिंग जो होगा ना वो फील्ड होगा। रिपीट कर रहे हैं इसको, अगर आपके पास कोई रिंग है which is commutative ring with unity, तो उसका जो कोशेंट रिंग बनेगा ना वो फील्ड होगा।
तो अब क्या प्रूफ करना होगा? ऐसा भी इफ एंड ओनली इफ पार्ट है तो आपको दोनों साइड से प्रूफ करना है। आपको पहले एज्यूम करना है कि आर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, देन आर बाई एस फील्ड, और दूसरा आर बाई एस अगर फील्ड है तो एस कम्यूटेटिव होगा। और ठीक है, सिंस आर इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी देयरफॉर आर क्वोशिएंट रिंग ऑफ आर इज आल्सो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अंडरस्टूड? ये अगर रिंग कम्यूटेटिव है और यूनिटी के साथ है तो उसका जो क्वोशिएंट रिंग बनेगा ना वो भी कम्यूटेटिव होगा। द जीरो एलिमेंट ऑफ आर बाई एस इज एस। जीरो एलिमेंट मतलब एडिटिव आइडेंटिटी, एंड द यूनिटी एलिमेंट ऑफ आर बाई एस इज एस प्लस वन, वेयर वन इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ आर। हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो आइडियल है एस वो मैक्सिमल है। अब यहाँ पे मैक्सिमल वर्ड यूज हो रहा है। मैक्सिमल आइडियल का मतलब है कि अगर आपके पास रिंग है उसमें अगर तीन आइडियल है I1, I2, I3, तो जिस आइडियल को हम लोग मैक्सिमल बोलेंगे उससे बड़ा और आइडियल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो लेट द आइडियल एस बी मैक्सिमल, देन टू प्रूव दैट आर बाई एस इज अ फील्ड। ठीक है, हम लोग आइडियल मैक्सिमल लिए हैं, हम लोग को प्रूफ करना है कि आर बाई एस जो है वो फील्ड होगा। ठीक है, थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी रिंग आर कम्यूटेटिव है यूनिटी के साथ और ये आइडियल मैक्सिमल है तो आर बाई एस फील्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ठीक है जो आइडियल है मेरे पास वो मैक्सिमल है, तो लेट एस प्लस बी एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर बाई एस। एक एलिमेंट लिए हैं विच इज नॉन जीरो, देन एस प्लस बी इज नॉट इक्वल टू एस। ये नॉट इक्वल टू जीरो होती है, ये भी एस के इक्वल नहीं होगा क्योंकि एस तो एडिटिव आइडेंटिटी है। and B does not belongs to S. To prove that S plus B is inversible, R by S फील्ड है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप R by S में कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो आपको दिखाना होगा कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो फील्ड हो जाएगा। If B is the principal ideal of R generated by B, then S plus B is also an ideal of R. Since B does not belongs to S, therefore the ideal S is properly contained in S plus B. But S is maximal ideal of R, hence we must have S plus B equal to R. यहाँ पे हम लोग ये assume किए थे कि S maximal ideal है और यहाँ पे हम एक नॉन जीरो एलिमेंट लिए S plus B। ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट इसलिए S के इक्वल नहीं होगा, तो S plus B हम लोगों को दिखाना है कि इनवर्सिबल है। हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि B जो है, if B is principal ideal of R generated by B, अगर प्रिंसिपल आइडियल है तो एक एलिमेंट से जनरेट होगा, तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वो एलिमेंट जो है वो B है, तो S plus B वो भी आइडियल होगा R का। सिंस B does not belongs to S, अभी जस्ट देखे हैं कि B S में नहीं है, ये B S में नहीं है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि B S में नहीं है therefore the ideal S is properly contained in S plus B, but S is maximal ideal of R, S जो है वो maximal ideal है, hence we must have S plus B equal to R। ये दोनों के बीच में और कोई दूसरा आइडियल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि S मैक्सिमल है। Since 1 belongs to R, therefore we must obtain 1 on adding an element of S to an element of B. Therefore there exists an element A belongs to S and alpha belongs to R such that A plus alpha B equal to 1। ठीक है, जो मेरे पास रिंग है उसमें 1 है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? We must obtain 1। हम लोग को 1 कैसे मिलेगा? By adding an element of S to an element of B। यहाँ पे मिल गया है S plus ideal generated by B equal to R, मतलब एक एलिमेंट इसका एक एलिमेंट इसका, दिस इक्वल टू R। अब R में अगर 1 है तो एक एलिमेंट का S का मिलना चाहिए और दूसरा B का मिलना चाहिए, B का मिलना चाहिए, मतलब ये तो प्रिंसिपल आइडियल है, तो एलिमेंट मिलना चाहिए विच इज मल्टीपल ऑफ B। तो दिस इज A plus alpha B equal to 1 which is 1 minus alpha B equal to A which belongs to S। इसका मतलब है कि S plus 1 can this is equal to S plus alpha B, this can be written as S plus alpha S plus B
और s प्लस अल्फा इक्वल टू s प्लस बी इनवर्स। इसका मतलब है कि s प्लस बी का जो है इनवर्स मिल गया या s प्लस बी इन्वर्टिबल है, तो r by s is a field. Conversely, let S be an ideal of R such that R by S is a field. हम लोग एज्यूम करते हैं कि S जो है वो R का आइडियल है और R by S फील्ड है, then we have to prove that S is maximal ideal of R. इस केस में हम लोग एज्यूम करेंगे कि S मैक्सिमल आइडियल नहीं है और दूसरा आइडियल एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो दूसरा आइडियल एग्जिस्ट करेगा वो S और R के बीच होना चाहिए। S और R के बीच एग्जिस्ट करेगा तो इसको मैक्सिमल दिखाने के लिए अल्टीमेटली प्रूव करना पड़ेगा कि जो आइडियल में मैक्सिमल एज्यूम करें वो या तो S के इक्वल हो या तो R के। तो इसके लिए लेट S डैश बी एन आइडियल ऑफ R प्रॉपर्ली कंटेनिंग S, मतलब S इज सबसेट ऑफ S डैश एंड S और S डैश का वैल्यू इक्वल नहीं है, देन S विल बी मैक्सिमल if S dash equal to R. The element of R contained in S already belongs to S dash. Since S is subset of S dash, therefore R will be a subset of S dash if every element of alpha of R not contained in S also belongs to S dash. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि S dash जो है वो R का आइडियल है प्रॉपरली कंटेनिंग S. S dash R का आइडियल है जो S को कंटेन कर रहा है, मतलब S सबसेट है S dash का। S मैक्सिमल होगा जब S डैश का वैल्यू R होगा। मैक्सिमल, कोई भी आइडियल मैक्सिमल तभी होता है जब उस आइडियल और रिंग के बीच कोई दूसरा आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे S डैश का वैल्यू R के इक्वल होना चाहिए। द एलिमेंट्स ऑफ R कंटेन्ड इन S ऑलरेडी बिलोंग्स टू S डैश। जो भी एलिमेंट R में है वो S में बिलोंग करेगा। The elements of R contained in S already belongs to S dash, and since S is subset of S dash, ठीक है, S dash का सबसेट है इसलिए ये हो रहा है। Therefore R will be a subset of S dash if every element alpha of R not contained in S also belongs to S dash. If alpha belongs to R is such that alpha does not belongs to S. अगर कोई एक एलिमेंट हम अल्फा ले रहे हैं आर में और वो एलिमेंट ऐसा है कि वो एस में नहीं है, तो डेफिनेटली एस प्लस अल्फा का वैल्यू एस के इक्वल नहीं होगा, तो एस प्लस अल्फा एक नॉन जीरो एलिमेंट होगा आर बाई एस का। कोशेंट रिंग ले रहे हैं हम लोग आर बाई एस। अगर एस प्लस अल्फा एस के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो है कोशेंट रिंग के डेफिनेशन से। ऑल्सो एस डैश प्रॉपरली कंटेनिंग एस, therefore there exists an element beta of S dash not contained in S. So S plus beta is also a non-zero element of R by S. S plus alpha S के इक्वल नहीं था इसलिए S plus alpha non-zero हो गया। S plus beta भी एक non-zero element है R by S का। Now the non-zero elements of R by S form a group with respect to multiplication because R by S is a field. कोई भी फील्ड है अगर, तो फील्ड के लिए रिंग होना जरूरी है, लेकिन फील्ड के लिए जो स्पेशल प्रॉपर्टी है रिंग में वो ये है कि रिंग का जितना भी नॉन जीरो एलिमेंट है अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो फील्ड बन जाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरे पास कोशेंट रिंग है आर बाई एस, अब ये तो फील्ड है, हम लोग को दिखाना है कि एस मैक्सिमल होगा, लेकिन हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो फील्ड है, तो एक एलिमेंट हम एस प्लस अल्फा लिए जो नॉट इक्वल टू जीरो है, दूसरा एलिमेंट हम लिए एस प्लस बी वो भी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो जितना भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा आर बाई एस का वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि आर बाई एस फील्ड है। तो एस प्लस वाई एस प्लस बी बीटा कैन बी रिटन एज इक्वल टू एस प्लस अल्फा। we may take s plus y equal to s plus alpha s plus beta इनवर्स ये लिख सकते हैं। Now s plus y s plus b equal to s plus a and this is can be written as s plus y को बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, s को बार बार नहीं लिखते हैं, और ये हो जाएगा s plus अल्फा, एक साइड करेंगे तो y बीटा माइनस अल्फा बिलोंग्स टू s, इसका मतलब है कि y बीटा माइनस अल्फा बिलोंग्स टू s डैश, ये लिखा हुआ है ना s इज सबसेट ऑफ s डैश।
Now S dash is an ideal, therefore Y belongs to R, beta belongs to S dash, तो Y beta भी S dash में है. अब Y beta S dash में है तो Y beta माइनस अल्फा भी S dash में होगा, तो यहाँ से अल्फा भी S dash में होगा. इसका मतलब है R S dash का सबसेट होगा, जो एलिमेंट R में ले रहे तो वो S dash में आ रहा है. एंड ऑल्सो S dash इज सबसेट ऑफ R. ये दोनों के थ्रू एक R S dash का सबसेट और इस केस में S dash R का सबसेट है और S dash आइडियल है R का, इसका मतलब S dash R है. तो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, दिखाना है S मैक्सिमल, लेकिन हम लोग एज्यूम किए कि नहीं, एक हम लोग को आइडियल मिल रहा है S dash जो S को कंटेन कर रहा है, बट S dash R के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे ये शो हो गया कि S मैक्सिमल है. इंपॉर्टेंट शुरू में एक बार पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, इसका एप्लीकेशन बहुत है. यहाँ पे डेफिनेशन है प्राइम आइडियल का. लेट R be a ring and S is an ideal of R. S is said to be prime ideal of R if AB belongs to S, AB belongs to R, implies that either A or B be in S. प्राइम आइडियल है और S अगर प्राइम आइडियल है तो A भी अगर S में है और A भी R में है, A कॉमा B R में है, तो इसका मतलब है कि A या B कोई ना कोई एक S में रहेगा ही. ठीक है, और अच्छा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल इन द रिंग ऑफ इंटीजर I द प्रिंसिपल आइडियल 7 is prime. Obviously if AB is in 7 then A or B must be a multiple of 7. प्राइम नंबर इसका जो भी मल्टीपल होगा 7, 14, 21, ठीक है, कोई उसमें सब में 7 रहेगा ही, तो वो obviously if AB is in 7 then A or B must be multiple of 7. On the other hand 6 is not a prime ideal in I, since in particular 12 can be written as 3 into 4 is in 6, yet neither 3 nor 4 is an element of 6. ये क्या समझिए थोड़ा. प्राइम आइडियल कैसे फाइंड करना है. सेट ऑफ इंटीजर में जितना भी प्राइम नंबर्स है, सेट ऑफ इंटीजर और रिंग ऑफ इंटीजर में जितना भी प्राइम नंबर है, उससे जो भी आइडियल जनरेट होगा ना वो होगा प्राइम आइडियल. ऑल्दो प्रिंसिपल आइडियल होगा लेकिन वो प्राइम आइडियल भी होगा. ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि इन द रिंग ऑफ इंटीजर ऑल प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय अ प्राइम नंबर इज अ प्राइम आइडियल. क्यों होगा, क्योंकि इस आइडियल को अगर हम लोग एक्सपैंड करेंगे ना तो 7, 14, 21, 28, 35, 42 एंड सो ऑन. अब कोई भी एलिमेंट अगर आप लेंगे तो वो 7 का मल्टीपल ही होगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा. ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना A और B मस्ट बी इन अ मल्टीपल ऑफ 7, इसलिए. देखिए दूसरा एग्जांपल लिखा है 6. अगर हम कोई कंपोजिट नंबर ले रहे हैं तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं ना 6 इज नॉट प्राइम आइडियल. ठीक है, क्यों नहीं है. अब 6 का मल्टीपल अगर ले रहे हैं तो 6, 12, 18 एंड सो ऑन. ठीक है, अब एक एलिमेंट हम 12 लेते हैं. दैट 12 कैन बी रिटन एज 3 into 4. 3, 4 कोई भी एलिमेंट 6 में नहीं है. ऑल्दो ये 6 का ही एलिमेंट है, मतलब प्रिंसिपल आइडियल है. इसको एक्सपैंड किए तो पहला एलिमेंट 6 मिला, दूसरा एलिमेंट 12, फिर 18, फिर 24, 30 एंड सो ऑन. लेकिन जब सेकंड एलिमेंट पे कॉन्सेंट्रेट किए जो 12 है, तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 into 4. पर ये दोनों में से कोई भी एलिमेंट 6 में नहीं है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है neither 3 nor 4 is an element of principal ideal 6. This principal ideal is not a prime ideal. Next theorem is also a very important theorem. Let R be a commutative ring and S is an ideal of R, then the ring of residue classes R upon S is an integral domain if and only if S is prime ideal. इसके पहले वाले केस में कोई रिंग है कम्यूटेटिव विद यूनिटी. ठीक है, इस केस में यूनिटी तो नहीं है, तो R बाई एस फील्ड होगा अगर S मैक्सिमल आइडियल है. इस केस में ये शो करना है कि अगर कोई रिंग है R और S उसका आइडियल है तो R बाई एस इंटीग्रल डोमेन होगा अगर S प्राइम आइडियल है. तो चलिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि R एक कम्यूटेटिव रिंग है एंड S उसका आइडियल है. तो R बाई एस का डेफिनेशन ये हो गया. अब दो एलिमेंट हम लिए हैं R बाई एस से और A और B R में है, तो ये दोनों एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा S प्लस B which is written as S plus B S plus A. क्यों, क्योंकि R कम्यूटेटिव. Now let S is a prime ideal of R, then we have to prove that R by S is an integral domain.
अब s प्राइम आइडियल है और हम लोगों को प्रूफ करना है कि r by s इंटीग्रल डोमेन है। For this we have to show that r by s is without zero divisor. इंटीग्रल डोमेन दिखाने के एक ही वे, आपके पास रिंग है then you have to show that that ring is without zero divisor. अब जीरो डिवाइजर विदाउट जीरो डिवाइजर है, क्या करते हैं, ए बी इक्वल टू जीरो, देन यू हैव टू शो दैट आइदर ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू जीरो। पर यहाँ पे कोशेंट रिंग है, ठीक है, तो कोशेंट रिंग के लिए दो एलिमेंट हो गया, पहला ये दूसरा ये इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब सिर्फ जीरो नहीं लिख सकते, यहाँ पे एस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एस इज द जीरो एलिमेंट ऑफ आर बाई एस। अब ये हो जाएगा एस प्लस ए बी इक्वल टू एस, इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू एस, लिख सकते हैं, ये कोशेंट रिंग के डेफिनेशन है। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि एस प्राइम आइडियल है तो आइदर ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस, तो इसका मतलब अगर ए एस में है तो ए एस प्लस ए एस हो गया, और अगर बी एस में है तो एस प्लस बी इक्वल टू एस हो गया, तो ये हो गया, प्रूफ हो गया ना, दिस इज जीरो एलिमेंट ऑफ आर बाई एस, हेंस आर बाई एस इज विदाउट जीरो डिवाइजर। नेक्स्ट हम लोगों को शो करना है कि आर बाई एस अगर कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है देन एस इज R by S is an integral sorry, तो R by S is a commutative ring without zero divisor, then R by S is an integral domain. Next हम लोगों को शो करना है कि if R by S is an integral domain, then S is a prime ideal. तो इंटीग्रल डोमेन का प्रॉपर्टी लेके चलते हैं, A और B दो एलिमेंट लिए हैं और A B S में है, A B अगर S में है तो S प्लस A B का वैल्यू S में इक्वल टू S होगा, तो S प्लस A B S प्लस B इक्वल टू S. Since R by S is an integral domain, therefore it is without zero divisor. Therefore this is equal to S. Either this or this is zero. तो zero का मतलब क्या होगा, S plus A equal to S और S plus B equal to S. अगर ये हुआ तो A S में हुआ और अगर ये हुआ तो B S में हुआ, ये प्रूफ हो गया ना। Either A belongs to S or B belongs to S implies S is prime ideal. Simple. इजी है ये थ्योरम, ऑलमोस्ट लास्ट का कुछ लाइन तो सेम ही है, यहाँ पे 3-4 लाइन और यहाँ का 3-4 लाइन, ठीक है। तो एक बार रिकैप हो जाता है, एक बार रिकैप कर लेते हैं। अगर कोई रिंग कम्यूटेटिव है विद यूनिटी तो उसका कोशेंट रिंग जो है वो फील्ड होगा कब, जब वो आइडियल मैक्सिमल होगा, मतलब R by S is the field if and only if S is maximal. And for a commutative ring, R by S is an integral domain if and only if S is a prime ideal. ठीक है, प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल का केस, अगर मैक्सिमल आइडियल हो रहा है तो वो फील्ड होगा और प्राइम आइडियल हो रहा है तो वो इंटीग्रल डोमेन होगा। नेक्स्ट इज रिंग ऑफ पोलिनोमियल, बहुत पढ़े हैं पोलिनोमियल, तो हम लोग पोलिनोमियल का रिंग भी बना सकते हैं, ठीक है, इजी है ये चीज। तो स्टार्ट करते हैं बस थोड़ा। The set Rx of all polynomials over an arbitrary ring R is a ring with respect to addition and multiplication of polynomials. ठीक है, Rx जो है R within square bracket x, इसमें polynomials का कलेक्शन है, ठीक है, अंडर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जो हम लोग पढ़ते हैं ना, polynomials का एडिशन मल्टीप्लीकेशन, इसके रिस्पेक्ट में Rx हमेशा रिंग फॉर्म करता है, ये प्रूफ भी दिया हुआ है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। दो पोलिनोमियल लिए हैं, ठीक है, दो पोलिनोमियल का सम, उसको एडिटिव सॉरी उसको दिखा रहे हैं अबेलियन को एडिशन के अंदर, दो पोलिनोमियल को सम करेंगे वो हमेशा पोलिनोमियल होगा। जीरो पोलिनोमियल एग्जिस्ट करता है जो आइडेंटिटी होगा, हर पोलिनोमियल के करस्पॉन्डिंग एडिटिव इनवर्स ले सकते हैं उसका, इट्स लाइक अगर हम एक्स स्क्वायर लिए तो माइनस एक्स स्क्वायर इज एडिटिव इनवर्स, एसोसिएटिव वो होता ही है, ठीक है, तो इस टाइप से ये शो हो जाएगा कि एडिटिव अबेलियन ग्रुप है ये अंडर एडिशन। बाकी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी शो हो जाएगा कि एसोसिएटिव होता है मल्टीप्लिकेशन, कंपैटिबल है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के साथ। एक बार चेक करके देखिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा, इजी है। नेक्स्ट थ्योरम, इफ D is an integral domain then the polynomial ring Dx is also an integral domain. Let D be a commutative ring without zero divisor with unity element 1. अगर D इंटीग्रल डोमेन है ना तो उसका तो पोलिनोमियल रिंग होगा ना Dx, वो भी इंटीग्रल डोमेन होगा, तो इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा, विदाउट जीरो डिवाइजर। तो यहाँ पे D is a commutative ring with zero divisor and with unity element 1. To prove that Dx is an integral domain, we have to prove that it is commutative without zero divisor and have unity element. तो dx कम्यूटेटिव होता है, पोलिनोमियल को ऐड करें, कम्यूटेटिव हो गई है, एक पोलिनोमियल fx लिए दूसरा gx लिए,
एफ एक्स जी एक्स निकालिए और जी एक्स एफ एक्स निकालिए, दोनों सेम होगा, ठीक है, ये कम्यूटेटिव हो गया। यूनिटी मिलता है ये पोलिनोमियल में, वन कैन बी रिटन एज अ 1 + 0x + 0x स्क्वायर एंड सो ऑन, दिस दैट मींस 1 एग्जिस्ट। एंड नेक्स्ट अल्टीमेटली दिखाएंगे कि dx जो है विदाउट जीरो डिवाइजर है, एफ एक्स एक एलिमेंट लिए, दूसरा जी एक्स एलिमेंट लिए, ठीक है। अब एफ एक्स जी एक्स कैनॉट बी जीरो पोलिनोमियल, दैट इज द जीरो एलिमेंट ऑफ dx. The reason is that at least one coefficient of f(x), gx, namely a and bn of xn plus 1 is not equal to 0 because a and bn are non-zero elements of D and D is without zero divisor. देखिए जब दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे ना एफ एक्स जी एक्स, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, ए नॉट सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ए वन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए टू सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करने के बाद कोफिशिएंट का भी मल्टीप्लिकेशन होगा, और सारा कोफिशिएंट डी इंटीग्रल डोमेन डी का एलिमेंट है। अगर ए आई बी आई इंटीग्रल डोमेन में है तो दोनों एक साथ कभी जीरो नहीं होगा, इसीलिए डी एक्स जो है ना वो भी विदाउट जीरो डिवाइजर होगा, इसलिए डी एक्स इज एन इंटीग्रल डोमेन।